dear friends in the media, thank you so much for being here. It's an honor to be on this panel among such esteemed doctors. Thank you so much for having me. I truly believe in women's health. I feel it's something which is usually ignored, something which is not given the kind of importance that it deserves. And there are various reasons for why I want to collaborate and I like to advocate women's health. I feel if we don't take care of ourselves, how are we going to be responsible or taking care of our children, which eventually form societies, communities, and the world in general? It's extremely important for the mother to be healthy and happy so that her child can be healthy and happy. I feel it's extremely important for women to be able to take care of themselves in order to take care of their families as well. So, yeah, that's pretty much the reason. That's wonderful. That's awesome, isn't it? Because your word as an ambassador goes a long way and will help our, the purpose as well. So you are carrying our purpose up. So hopefully if this influences how many ever people and the word spreads as much, I think it's something that's so crucial and so important. I was talking to all the doctors before we got onto this panel, and the statistics are horrifying. So if we can make a difference from our end to even one life, I think it's absolutely worth it. Hello, it's good. Good afternoon to everyone. Good to see you, Fazil ma'am. My name is Ayush and I'm from Bazooka Media. मेरा सवाल आप सभी से, स्पेशली काजल मैम आपसे, कि 2023 की बात करूँ तो 20 मिलियन केस दर्ज कराए गए थे कैंसर के, जिसमें से 10 मिलियन ने अपनी जान गंवा दी। और एज एन एक्टर्स भी कई फिल्म लेकर आते हैं कुछ अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिसमें पैडमैन से टॉयलेट एक प्रेम कथा, ऐसे कई मुद्दों पर फिल्म आती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे कई कैंपेन्स, कई योजना आती है, लेकिन वो योजना, वो कैंपेन उस गांव और कस्बे पे छूट जाती है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और वहाँ से मेजर प्रॉब्लम्स हम सभी के बीच में आते हैं। तो जिस वैक्सीन की हम बात करें, जिन मुद्दों की बात करें, क्या ये वैक्सीन, क्या ये मुद्दे उस गांव और कस्बे तक पहुंचेंगे जहां की वुमेन अपनी फैमिली की कवच बनकर बैठी है? Hello Ayush. Yes, that's a very good question. Thank you for asking. As actors, we try our level best to spread the awareness through our movies and through our work and representing causes like this. मैं यहाँ पे आज इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मुद्दा, ये बात, ये अवेयरनेस हर जगह, हर छोटे गांव, हर लड़की तक पहुँचे और उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़े। इसके आगे आई थिंक ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी, मेरी, हम सब की, डॉक्टर्स जो यहाँ पे हैं सबकी, कि हम इस बात को फैलाएं, हम अपने आसपास के लोगों को, स्पेशली अपनी फैमिली में हमारी मम्मा, बहनें वगैरह, बेटियाँ, सबका ख्याल रखें, सबको वो वैक्सीन्स दिलवाएं जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, जिससे उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ सकता है। और जैसे इन्होंने अभी कहा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। So I think this is just our basic responsibility, and for this to spread in a vast country like ours, I think it's our collective responsibility, each and every person. So as actors, we can only do so much. Spread the word, which is the fastest medium in our country, cinema and cricket. But if we all take up this responsibility and become ambassadors on a personal level, I think we will go a long way. Absolutely, very well said, because it is a personal responsibility of each and every person to really take it up, whichever career they are, might be an actor, might be a doctor, social media, and influencers. I think it's really a collective responsibility of all of us to put it up forth, saying that yes, vaccination is available. क्यों मरे भाई जिस disease के लिए कुछ prevention है? Why should you die? बिल्कुल सही बात है। Good afternoon, everyone. It's really nice to be here. Thank you so much, Foxy, MSD, for having us and for holding this panel discussion. I think today we've all touched upon a very important and sensitive topic, which is HPV vaccines. I believe that it's extremely important to get this vaccine, and as women take care of our health, do a lot of preventive health, consult our gynacs, even postpartum, after a few years, constantly keep revisiting our gynacs.
always ensure that we are up to date with our vaccines. And a big thanks to Foxy and MSD for launching the immunization calendar, which is extremely important and helps us remember the schedule, timing, and all the important vaccines that we need to take in our adulthood. So let's take care of ourselves as much as we invest in taking care of our children. Thank you. काजल मैम मेरा सवाल आपसे, जब हम बात वैक्सीन की करते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कोविड आता जी। था, हम वैक्सीन के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे। अब इस देश में ऐसा हो गया कि मैम अपने आधार कार्ड को अगर मोबाइल से लिंक कराएं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर होता है। ये एक वैक्सीन को लेकर आप मैं जानना चाहूँगा कि ऑडियंस के मन में जिस तरीके का एक डर है वैक्सीन को लेकर कि हमारी तबीयत ना खराब हो जाए या फिर हम अपनी जान ना गवा दें, इस चीज़ को लेकर आप किस तरीके से अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहेंगे उस डर के लिए जो एक आम आदमी के मन में आज भी है? आई थिंक हमें मिथ्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, मिथ्स बस्ट करने चाहिए। और ऑफ कोर्स इतने अमेजिंग डॉक्टर्स हैं हमारे कंट्री में, हर जगह आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप अपने फिजिशियंस के पास जाइए, गायनैक्स के पास जाइए, और वैक्सीन्स आर देयर टू सेव आवर लाइव्स, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट, जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी था, सेम वे हर एक डिज़ीज़ के लिए जिसके भी लिए वैक्सीन बनाई गई है उसे हमें यूज़ करना चाहिए। ऑफ कोर्स साइंस इज़ डेवलपिंग और हमें साइंस के साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यू नो मैम, आज की जनरेशन में लड़कियों में देखा जा रहा है मेन प्रॉब्लम जैसे ब्रेस्ट कैंसर जी। है, पीसीओडी है, कम एज में ही वो लोग को ये सब प्रॉब्लमें हो रही है जी। और वो लोग कहीं ना कहीं डरती है कुछ मतलब ट्रीटमेंट कराने से, आपके वैक्सीन लेने से। तो लोग को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे वो खुद को प्रोटेक्ट करें? यस प्लीज़। डेफिनेटली आजकल हम देख रहे हैं यंग लड़कियों में भी बहुत सी बीमारियाँ जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड HPV इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं। सो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है, पोल्यूशन एनवायरनमेंट में, खाने में, हर एक चीज़ में आ गई है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल शुड बी हेल्थी, एडवाइस लेना चाहिए, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड गो टू योर गायनोकोलॉजिस्ट इवन व्हेन यू आर नॉट सिक, दैट्स अ बिग मैसेज कि शादी के पहले डॉक्टर के पास जाओ, एडवाइस लो। तुम्हें एक ही चीज़ के लिए नहीं, खाली वैक्सीनेशन के लिए नहीं, तुम्हें अपनी फैमिली कैसे प्लान करनी है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, हेल्थ के लिए क्या ले सकते हो, प्रिवेंट क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि वैक्सीनेशन आज हर एक एज के लिए है। एडल्ट वैक्सीनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, बच्चों को तो हम सबको वैक्सीनेट कर देते हैं, मगर उसके बाद 9 to 14 ईयर्स के बीच में HPV वैक्सीन अगर वो मिस हो गया तो 45 ईयर्स तक आप लोग ले सकते हैं। दूसरे भी बहुत वैक्सीन हैं, Tdap वैक्सीन है, हेपेटाइटिस वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, न्यूमोकॉकल, वैरिसेल। तो हर एक एज और स्टेज पे हमारे पास प्रिवेंशन के लिए चीज़ें हैं, स्क्रीनिंग के लिए कैंसर टेस्ट हैं। सो आई थिंक आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बी कॉन्शियस, यू कैन प्रिवेंट ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस, और अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो अर्ली डायग्नोज करके उनको ट्रीट कर सकते हैं। इवन मैम अगर बात करें वुमेन की, तो आप हो तो बॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप मोर देन 15 ईयर्स यू हैव कम्प्लीटेड इन इंडस्ट्री, तो आपको क्या लगता है वुमेन से रिलेटेड बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री में क्या कुछ पहले से चेंज हुआ है और क्या कुछ चेंज होना चाहिए? मैं फिल्मी क्वेश्चंस बाद में लूँगी, आज सिर्फ HPV और वैक्सीन्स और फॉक्सी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जी, मैं आपको प्राइवेट इंटरव्यू बाद में दूँगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स गाइस। So good, to the point and exact.